Good morning, students. In today's lecture, myself, Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering the session third, Overcoming Challenges in Sustainable Development of Unit 5, that is related to Green Skill Budget. In total, there are three sessions in this unit. First of all, which we did was sustainable development. What is sustainable development? Means the growth, overall growth of the world, but taking into the consideration that the basic need of present plus of future generation should be sustained along with the development. Development should be done socially, economically, as well as environmental way. But the basic thing is that we have to take care that our daily basic needs plus of ours plus of our future should not hinder in any case. So 17 goals were prepared by General Assembly of UN, that is a body of UN, for the whole world, in which 169 targets were there which should be achieved in order to achieve the 17 goals. As well as along with this, indicators were also assigned. But in session 2, we studied that there are some challenges which one, or we can say that they were the challenges which try to hinder to achieve the goals, due to which the 17 goals were not being successfully being implemented. But now in session third, they are covering by how to overcome the challenges in sustainable development. ये जो चैलेंज सामने आ रहे थे 17 गोल्स को अचीव करने के लिए, स्पेशली इन इंडिया, हाउ टू ओवरकम देम, जो हमारा सेशन 2 था वो भी डील किया गया था कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया के अंदर के पीपल्स को वी कैन से और द गवर्नमेंट वाज फेसिंग in order to achieve the sustainable development. So in session third, they are giving the intro regarding the sustainable development only, what it is, and there were the 17 goals were there. It is telling. In the previous session, you learned about various challenges that government faces for the attainment of 17 SDGs. In what the 17 SDGs are? 17 sustainable development goals, and they're saying that in this we are going to cover how to overcome these challenges. Okay, now naturally when we have to overcome the challenges, we have to go for some measurement in order to overcome the challenges in sustainable development. So in this session we are going to deal with it. So they're saying the challenges discussed in previous session require careful planning and developing. No doubt, planning should be done for each and everything. कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हमें उसका सोल्यूशन निकालना है तो हमें उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी in order to fulfill up the things. So they're saying that various planning and development were made, or we have to made, or it is required for planning and developing exclusively model for implementing means लागू करना, monitor means take care करना कि वो fulfill हो रही है या नहीं, and measure it and reporting SDG related things, or they have said course. So और वी कैन से द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस भी जो भी हमने लेने हैं उसको ओवरकम करने के लिए. सो मेजर्स वर टेकन. लेट्स स्टडीज वन बाय वन. दे आर सेइंग, अब जैसे कि हमने पहला इन्होंने दे रखा डिफाइंड लीडरशिप एंड ओवरव्यू. पहला चैलेंज इंडिया में ये था कि डिफाइंड लीडरशिप नहीं थी.
और कोई पर्टिकुलर पर्सन ओनर नहीं था। अब जैसे आपको पता ही है बेटा भली भांति कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ की किसी को, तो वो उसको फुली रिस्पॉन्सिबल होता है और वो करता है उसको, क्योंकि होता है कि कल को मुझे कोई कहेगा तो इट इज़ बेटर दैट आई शुड डू इट, क्योंकि आई हैव टू आंसर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपनी क्लास का ही ले लो, अगर डिस्प्ले बोर्ड के लिए मैं सबको कह दूं, है ना, कि आपने ये डिस्प्ले बोर्ड प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक द डिस्प्ले बोर्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि सब सोचेंगे ये करेगा वो करेगा और उसने होना ही नहीं। और अगर मैं लाइन वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं हर वीक की और हर लाइन का एक मॉनिटर बना दूं, ठीक है, कि यू हैव टू टेक केयर रिगार्डिंग दिस डिस्प्ले बोर्ड एंड यू हैव टू टेक द वर्क फ्रॉम द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स को वो ड्यूटी असाइन करेगा, उनको भी डर रहेगा कि मॉनिटर क्या करेगा, मैम को बता देगा, और मॉनिटर को डर रहेगा कि मैम मुझे डांटेंगी तो इसलिए मैं काम करवाऊँ। और डिस्प्ले बोर्ड पे हर वीक न्यू थिंग वी आर एबल टू फाइंड आउट। लेकिन अगर पूरी ड्यूटी को पूरी क्लास को ड्यूटी दे दी जाए रिगार्डिंग द डिस्प्ले बोर्ड, तो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मैंने दिया, कोई किसी को पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो काम होगा ही नहीं। तो सेम थिंग हो हैपन इन इंडिया। Government need to clearly specify and make one organization fully responsible for the things, for implementing means लागू करना चाहिए, एसडीजी विद फुल ओनरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन को देनी चाहिए। और एक कैपेबल पर्सन को मस्ट बी ऑफिशियली असाइंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप फॉर डूइंग द सेम। There should be clearly defined rules और responsibility with expected deliverables, क्या डिलीवर करना है उन्होंने। और this will ensure, ये इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि सारी पॉलिसी माने नीतियाँ, लेजिस्लेशन मीन्स रूल्स लागू करना, इन्वेस्टमेंट मीन्स कितना खर्चा करना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, है ना, आर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड वेल इन टाइम। तो सब कुछ जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो हमें नेचुरली द थिंग्स विल गेट इट इन अ टाइम एंड रिस्पॉन्सिबली कैरिड आउट। तो कहते हैं कि हमें एक लीडर बनाना चाहिए जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक लीडर जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए काम करने के लिए, एंड कोऑर्डिनेट पार्टनर्स अमंग ऑल स्टेक होल्डर एंड डिलीवर द एक्सपेक्टेड आउटकम, जिससे रिजल्ट आ सके। स्टेक होल्डर्स मीन जो उसमें रिस्पॉन्सिबल हों उस काम को करने के लिए, एंड डिलीवर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड मीन्स जो होना चाहिए, आउटकम मीन्स रिजल्ट। अब जैसे हमारे इंडिया में तो क्या था, सेंट्रल लेवल पे भी स्कीम्स बनाएगी और उसको लागू कौन कर रहा है, स्टेट लेवल पे भी लागू हो रहा था। तो कई बार क्या होता था, इनकी आपस में ही राय नहीं मिल पाती थी, है ना, ड्यू टू विच द जो गोल्स की अचीवमेंट थी या इम्प्लीमेंटेशन था वो बीच में ही रह जाता था। कई बार ड्यू टू द टाइम लाइन लिमिटेशन या रिलेटेड टू फाइनेंस या उनकी आपस में वो विचार ही नहीं मिल पाते थे, तो जिसके कारण वो लागू नहीं हो पाता था। तो इसलिए कहा गया है कि लीडरशिप एंड ओनरशिप शुड बी गिवन। ओके, सो देन कम मेजर्स फॉर सोशल इंक्लूजन। अब जैसे कि हमने चैलेंजेस में पढ़ा कि हमारे इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हैं, जिसके कारण हम लोग 17 गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी बेसिक नीड होती थी। तो कहते हैं ये एक चैलेंज है, सिंस द चैलेंज सोशल इंक्लूजन हैज़ मैनी डेमोक्रेटिक रीजन, जैसे क्लाइमेटिक, जैसे कि मैं बता रही हूँ चेंजेस क्लाइमेटिक अलग अलग है रीज़न का, कल्चरल सोशल रीजन्स भी थे, है ना, ड्यू टू विल सभी पे बेसिक नीड नहीं पूरी हो पाई, डिफरेंट रीजन रिक्वायर्ड, सो इट इज़ अ डिफरेंट रीजन्स required different actions such as required policies, change, technology, upgradation। तो ये है कि देखो जब डाइवर्सिटी है तो हमें डाइवर्स पॉलिसीज़ भी तो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि देखो हर बंदे की एक अपनी बेसिक नीड होती है और उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसके मुताबिक नीतियाँ बनानी चाहिए, लेजिस्लेशन बनाना चाहिए या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कहते हैं इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत थी। नेक्स्ट आ गया डिफाइन स्कोप। स्कोप एंड स्प्रेड फॉर ईच ऑफ द एसडीजी शुड बी वेल ले आउट। ठीक है, भी हमें क्या करना चाहिए, लेड आउट करना चाहिए कि क्या
किसकी कहाँ तक दायरा है, क्लियरली मार्क्ड एक्सपेक्टेड माइलस्टोन्स, है ना भी, किस चीज़ का कहाँ तक दायरा है ये बताना ज़रूरी था, जो कि 17 SDG लैक किया करते थे, है ना। तो कहते हैं ये भी एक चैलेंज था और जिसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, डिफाइंड स्कोप वगैरह बना के। जैसे अब एग्जाम्पल ही ले लो, फॉर क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं अभी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसका वेल डिफाइंड स्कोप या डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड, है ना, होना चाहिए। अब वेल एजुकेशन से तो नहीं पता लग जाएगा वेल एजुकेशन, इसके कई मीनिंग है, इसका स्कोप काफ़ी तक है, अंदर तक है ना, वाइड स्प्रेड है, तो वो क्लियर होनी चाहिए जी। जैसे व्हाट इज़ द क्वालिटी एजुकेशन की हर लेवल पे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल की। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्या चाहिए 5 साल बाद, है ना, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए टीचर्स की, है ना, टीचर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। क्लियरली डिफाइंड करो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म माइलस्टोन्स क्या है, कितने दायरे में क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, इतनी देर बाद टाइम लिमिट के बाद क्या रिजल्ट आना चाहिए, है ना, क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं हर इंस्टीट्यूट की, और बाकायदा उनके ऊपर चेक होना चाहिए। सो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शुड बी एवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड सो फॉर। और जब डिफाइंड स्कोप क्लियरली मिलेंगे तो नेचुरली द थिंग्स विल बी डन। फिर आ गया क्लियर इंडिकेटर्स। अब देखो मैंने कहा था कि 17 गोल्स बनाए गए, 169 टारगेट्स असाइन किए गए और कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए। इंडिकेटर्स क्या बताया था बेटा मैंने, कि इंडिकेटर्स हैं क्या, इंडिकेटर्स हैं जो प्रोग्रेस को नापते हैं, है ना, कि जो 17 गोल्स बनाए गए कि वो अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। Is it okay? So they said there should be clearly defined indicators that help monitor the progress of at the quantity level as well as quality level. तो वो क्लियर होना चाहिए ना कि क्या इंडिकेटर, ठीक है इंडिकेटर्स बना दो इसके, क्या इंडिकेटर्स बनाए जाए, किस तरह बनाए जाए, उसकी चीज़ में किस चीज़ की जांच होनी चाहिए। अब जैसे कह दे क्लीन वाटर SDG, ठीक है ये गोल था। अब क्लीन वाटर कैसे होएगा, अब सिंपल वाटर पंप्स या टैंक्स लगाने से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे क्लीन वाटर है। क्लीन वर्ड तो ठीक है एक छोटा सा है 5 करेक्टर्स का, लेकिन उसके पीछे काफ़ी कुछ है, जैसे क्वालिटी कैसी है पानी की, इंडिकेटर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर, वाटर का टेम्परेचर क्या है, टर्बिटी क्या, टर्बिटी मीन्स क्लियरिटी, उसमें सेडिमेंटेशन वगैरह तो नहीं है। इंडिकेटर अबाउट द केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, है ना, pH लेवल क्या है इसका, इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, pH होता है मेजर ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयंस कितने हैं इसके अंदर। इंडिकेटर अबाउट द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी, क्या इसमें फ्लोरा और फौना एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर पीपल कंजम्पशन, क्या पीपल इसको ले कंज्यूम कर सकते हैं, कई बार कई तरह की बीमारियां ही उसके अंदर होती हैं बेटा। मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर पर पर्सन कितनी होनी चाहिए, है ना। तो मैनी थिंग्स आर देयर विच वॉज नॉट क्लियरली मैंशन। नाउ दे सेइंग करेक्ट एंड एम्पल डेटा फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। मैंने चैलेंजेस में बताया था कि जो लास्ट पॉइंट था कि हमारा इंडिया में जैसे काफ़ी डाइवर्सिटीज़ है ना, काफ़ी लोग हैं, तो मतलब कि अब देखो कोई भी चीज़ मेज़र करने के लिए डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली आप ले लो अपनी रिपोर्ट कार्ड ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हर बच्चे का हर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होने चाहिए, कलेक्ट होने चाहिए, है ना, फिर उनको एग्रीगेट करना है, फिर टोटल करके फिर उसकी परसेंटेज निकालनी, इज इट सो नॉट। तो डेटा लेना बहुत ज़रूरी है ना, और टाइम टू टाइम एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जो कि नहीं हो पाता था। अब जैसे इसमें करें, अब उसको चैलेंज को ओवरकम तो करना। लो लेट्स सी हाउ दे आर सेइंग टू मॉनिटर प्रोग्रेस करेक्ट एंड एम्पल मीन्स प्लेंटी ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल सिंस द डेटा इज टू बी कलेक्टेड अगेंस्ट इंडिकेटर, प्रोग्रेस तभी पता लगेगी, है ना। सो मस्ट बी, और वो इंडिकेटर उसके लिए वेल डिफाइंड है, किस तरह हमने डेटा कलेक्ट करना है। विद वेल डिफाइंड इंडिकेटर फॉलोइंग मेजर कैन बी टेकन टू इंश्योर करेक्ट एंड सफिशिएंट डेटा। अब जैसे क्लस्टर्ड इंडिकेटर,
indicator measuring a specific governance concept are sometime available from multiple sources. कई बार कहते हैं डेटा कलेक्ट हो जाता है कई सोर्सेज से, अब वो तो कई बार बार उसको काउंटिंग हो जाएगी और डबल काउंटिंग अवॉइड करनी चाहिए, और उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा को मेज़र करना पड़ेगा कंबाइंड इनटू अ सिंगल क्लस्टर्ड इंडिकेटर जो एवरेज निकालेगा, ठीक है ना, डेटा का। और कई बार होता है आपका डेटा ही मिसिंग हो रहा है, तो उसके लिए एस्टिमेट निकालना पड़ेगा फॉर द मिसिंग डेटा बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, दिस इज नोन एज इम्प्यूटेशन बेटा। और फिर नॉर्मलाइजेशन करना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बेटा, सिंस द डेटा कलेक्टेड मे बिलोंग टू डिफरेंट स्केल्स होता है ना मेजर करने, जैसे आप ग्राफ ही बनाते हो 10 सेंटीमीटर के लिए आप एक लाइन खींच देते हो, या 1 किलोमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 2, तो अलग अलग स्केल से मेजरमेंट की गई होती है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना थ्रू अ स्पेशल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एंड दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। अब इम्प्यूटेशन क्या था बेटा, मैं रिपीट कर दूं, वो क्या था, मिसिंग डेटा के लिए एस्टीमेट, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट स्केल्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। फिर डेटा एग्रीगेट, जैसे मार्क्स की रिपोर्ट कार्ड निकालने के लिए हम लोग सबको जोड़ते हैं ना पहले इकट्ठा करके, उसी तरह हमने सिंपल एवरेज कैलकुलेट करनी होती है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडेक्स टू अराइव एट द ओवरऑल गवर्नमेंट स्कोर्स बेटा। सो वी कैन से दिस 4 टेक्निक्स आर आइडियल, वेरी मच एप्लीकेबल फॉर इंडिया, इट शुड बी डन बेटा। ओके, फिर आपका आ जाता है लास्ट पॉइंट, फाइनेंसिंग एसटीजीज। देखो अब जब कोई भी चीज़ काम करना हो पैसा तो मस्ट है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए। अब इट मीन्स फाइनेंसिंग, सो चैलेंज फॉर फाइनेंस कैन बी ओवरकम विद द फॉलोइंग, दे आर टेलिंग 2 ways, बाय यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि वो हमें एक मेथड दें, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी दें जिससे हम लोग अपना फाइनेंस बर्डन को एक्सटेंड कर सकें या प्रॉपर उसको मेंटेन कर सकें। दूसरा, पब्लिक एंड प्राइवेट को चाहिए कि वो क्या कर लें, पार्टनरशिप करें इन ऑर्डर टू अचीव द चैलेंज दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस एसडीजीज। अब बेटा इसके अंदर आ गए क्वेश्चंस, 3 ही क्वेश्चंस हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, अभी चलो हमने ये किया, मैं थर्ड ही करवा देती हूँ आपको पहले, लिस्ट द मेजर्स फॉर फाइनेंसिंग द एसडीजीज। तो पहले क्वेश्चन में से द मेजर फॉर फाइनेंसिंग द एसडीजीज आर लिखा बेटा, उसके बाद यहीं से आपने ऊपर से कर देना है, नंबर 1 करके ये लिख दो, फिर नंबर 2 करके ये आपने पूरा लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन है लिस्ट द मेजर दैट कैन बी टेकन फॉर करेक्ट डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में से ही लिखो बेटा, है ना, मैंने आगे कर दिया था, सॉरी। पहले आपने द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू करेक्ट डेटा कैलकुलेशन आर, फिर पेज 109 पे बेटा, ठीक है, ये जो अभी हमने किए थे जस्ट नाउ। फिर ये जो 4 है ना, ये आपने चारों लिख देने हैं, है ना, दैट इज सॉरी, ये था आपका क्लस्टर इंडिकेटर, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा इंटीग्रेशन। फिर बेटा आ जाता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर्स फॉर ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो फिर ये आपका फर्स्ट पेज पर ही है बेटा जो हमने स्टार्ट किया था, पहले आप यहीं से लिख लेना, है ना, द वेरियस की जगह द कर लो बेटा उसको काट के, फिर द मेजर कैन बी टेकन टू ओवरकम द चैलेंजेस आर, फिर जो रेड में है आपने सभी को इनको लिखना है, डिफाइंड लीडरशिप एंड ओनरशिप, मेजर फॉर सोशल इंक्लूजन, ठीक है, डिफाइंड स्कोप्स हो गया बेटा, है ना, हेडिंग हो गई आपकी, फिर उसके बाद हो गया क्लियर इंडिकेटर्स होने चाहिए, ठीक है ना, फिर आपके करेक्ट एंड एम्पल डेटा होना चाहिए, है ना, फॉर मॉनिटरिंग द थिंग्स। फिर आपका आ गया दैट इज़ योर नेक्स्ट इज़ योर दैट इज़ योर फाइनेंस। ओके, थैंक्स बच्चे।